नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी। तो जो कन्फ्यूजन्स उठे थे और डिस्कशंस उन पे हमने की डबल बेंच के सीजीआई वाले जजमेंट पर नैनीताल हाईकोर्ट के, कि भाई इसमें कोरिजेंडम लेना है नहीं, तो ये तय हुआ कि कोरिजेंडम लेने की ज़रूरत नहीं है। द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन अपेक्स कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ hearing in the support of our claim. It seems every case of retirees will be decided favorably with the passage of time. Para 35, last para. The concluding para to be read with para 25 for 45 days. It is to inform to our advocate. हमने ये कालिया जी और राजेंद्र जी को कहा है। नाउ वी शुड फाइट, चूँकि कोर्ट में वही देखते हैं इस केस को, हम हैं साथ में लेकिन कोर्ट में वही देखते हैं। नाउ वी शुड फाइट इन सुप्रीम कोर्ट, केस ऑलरेडी फाइल्ड बाय IBA ऑन हियरिंग ग्राउंड्स। ऑल द रिस्पोंडेंट्स एग्री टू फाइट इन सुप्रीम कोर्ट बिकॉज SC double bench, one judge is CCI already decided in our favor. They also filed writ on 26 days, but in decision it's not discussed, though in last para all writs filed by employees allowed. What's your take on 26 days allowed or not? Already sent you East Syndicate Banks retirees prayers। हमने इनको प्रेयर्स भी भेजी हैं जिसमें उन्होंने 26 days दिया, और वो 2 पन्ने हमने उनको भेजे हैं जो रिट में उनकी प्रेयर थी, ये ताकि हमारे एडवोकेट तक चली जाए, और वो चली गई होंगी। राजेंद्र जी और कालिया जी से बात हुई, डिस्कशन हुआ ऑन मैसेजेस, और दूसरे लोगों से बात करवाई हमने। रीड होल order specifically para 22, 27 and 30 deciding core issues 45 days and special allowance. Final order is for recalculation of grade in terms of order decided in various paras with proper reasoning and citation. The Honorable CGI in her speaking judgment has rejected plea and citation of all of bank's lawyer Mr. Joshi against our written arguments on various issues categorized by us in our written arguments. Be it known that our counter writ petition was filed on 4 issues: payment of gratuity and special allowance, DA 45 days, calculation period 30 years service, quotient 26 days, lastly power of DLC to reduce awarded interest 7% to 5%। तो ये सब हमने उनको भेज दिए हैं। और VC गुप्ता जी के बारे में हमने कहा है कि सर, शुड वी टेक सर्विसेज ऑफ दिस रिटायर्ड हाई कोर्ट जज श्री VC गुप्ता जी, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट VC गुप्ता, टू फर्दर प्रोसीड ऑन आवर केस। ऑल दीज कम्युनिकेशन सेंड टू श्री के कालिया जी IOB एंड श्री राजेंद्र जी IOB प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट जलंधर, फाइटिंग आवर केस इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन gratuity recalculation and to special allowance and pension updation etc. Regards राजेश कुमार त्यागी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद। तो ये आपको मैंने बताई हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक और मेरे पास छोटी सी डेवलपमेंट है। मैंने एक मेरे साथी हैं उनको लिखा है अभी क्योंकि वो बीमार थे और हार्ट का ऑपरेशन, ओपन सर्जरी या कुछ हुआ था उनका, तो उनको मैंने मैसेज कर दिया है। Good morning sir, get well soon, hope be in better health now. Sir Tomar sir, if you seen my message on gratuity Nainital High Court bench, double bench, and as you know it will help us in Supreme Court, as you be knowing that we are in Delhi High Court counter writ by IBA in Supreme Court on hearing grounds. We shall now fight in Supreme Court. Our friends so far RB had filed one more writ in Supreme Court last days, admitted yesterday. Now it is SLP. As our case is of universal nature and for all bank retirees on clearance from Supreme Court, you too may be benefited by 25 to 30 lakhs rupees being in 11th BPS retired. Moreover, this decision will help us in our Supreme Court
special allowance case in Supreme Court and regulatory calculation case in Supreme Court. That's it, just to inform you. Be happy और स्वस्थ रहें। श्री तोमर साहब को मैंने ये लिखा है उन्हें, और उन्हें जो उनके साथ हुई है दिक्कत वो ठीक हो जाएगी, उम्मीद करते हैं हम। ये थे सर। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि सभी लोगों को ये, और जो लोग चाहें, चाहे प्राइवेट बैंक के हों, चाहे आरआरबी के, और चाहे पीएसबीज के, और चाहे दूसरे बैंक्स के, वो चाहें तो इसमें ये केस लगा सकते हैं अपना एएलसी डीएलसीज में। एएलसी में लगेगा, फिर डीएलसी में जाएगा, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया और सुप्रीम कोर्ट का भी इसी आधार पर शायद आ जाएगा, उम्मीद करते हैं, पूरी उम्मीद है। तो वो फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, एएलसी से ही फाइनल हो जाएगा। वैसे तो बैंक ही करेगा, लेकिन लगा दे तो ये रहेगा आपने क्लेम कर लिया था टाइमली। हालांकि हमारा केस यूनिवर्सल नेचर का और सभी पीएसबीज के लिए, और ये आरआरबीजी का केस आ रहा है वो आरआरबीजी के लिए हुआ, पर प्राइवेट बैंक्स वालों को कभी दिक्कत हो तो वो लगा दें। वैसे भी मैंने अपने साथियों से कहा कि एएलसी में एक केस लगा के छोड़ दें। तो इसमें इतना ही, वाणी को विराम देता हूँ। नमन। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, 8588898205। सहयोग के लिए सहयोग रेसिप्रोकल है, आप हमसे जो भी सहयोग मांगेंगे हम देंगे, और आप चाहें तो हमें भी सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय।